students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is e-commerce and blogging. Objectives of learning, e-commerce and its advantages, e-commerce business modes, e-commerce websites, modes of payment, blogging. We are living in e-century. The internet and information and communication technologies, ICT, are central to economic growth and productivity. Internet-based technologies and networks can increase productivity, decrease costs, and open new market opportunities. Internet and its versatility has spread worldwide like a fire in the decade. Internet is a major tool to communicate, socialize, shop, and work. Nowadays, using the internet and email to conduct business is not uncommon. There are a wide variety of resources available to help you to improve your e-commerce skills. तो हम उस सेंचुरी में रह रहे हैं जहाँ पर आपकी इंटरनेट का यूज़ करना अनकॉमन नहीं है. बच्चे से बच्चा, बूढ़े से बूढ़ा, हर कोई इंटरनेट को यूज़ करता है, ईमेल्स यूज़ करता है, अलग अलग सोशलाइज करता है आपके अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म्स के जरिए. ई कॉमर्स होता है, शॉपिंग करते हैं. बच्चों को भी आज की डेट में पता है किस तरीके से कौन सा ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म यूज़ करा जाता है चीज़ों को ऑर्डर करने के लिए. तो फिलहाल हम जिस एरा में रह रहे हैं वहाँ पे ईमेल्स या फिर इन जनरल इंटरनेट का यूसेज इज़ नॉट अनकॉमन. सबसे पहले हम पढ़ेंगे ई कॉमर्स के बारे में. ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स refers to the buying and selling of goods and services over the internet. It involves the use of electronic platforms such as websites, mobile applications, and social media to conduct transactions between businesses and consumers or between businesses. E-commerce has revolutionized the way businesses operate and has created new opportunities for entrepreneurs and consumers alike. One of the primary benefits of e-commerce is that it offers a more convenient and efficient way to conduct business. Consumers can browse and purchase products from the comfort of their own homes, while businesses can reach a global audience without the need for a physical storefront. E-commerce has also enabled businesses to streamline their operations by automating many of the tasks involved in the sale process, such as inventory management, order processing, and shipping. Three different types of people are involved with commerce. They are producers, sellers, buyers. अब आपका ई-कॉमर्स क्या है? बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का शॉर्ट फॉर्म है ई-कॉमर्स. आपकी अलग अलग वेबसाइट्स होती हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस होती हैं जहां पर आप किसी भी टाइप की शॉपिंग को कर सकते हैं. तो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ताकि ट्रांजैक्शंस हो सके बिजनेसेस और कंज्यूमर्स के बीच में, या फिर कंज्यूमर्स और कंज्यूमर्स के बीच में, या फिर आपके जो अलग अलग टाइप के बिजनेसेस होते हैं वो बिजनेसेस के बीच में ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं. ऑर्डर प्रोसेसिंग होती है. इसके अलावा आपकी डिलीवरी चार्जेस होते हैं. बहुत सारे अलग अलग टाइप की ई कॉमर्स होता है. इसने शॉपिंग को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है. आप एक जगह पे बैठ के कहीं से भी किसी भी टाइप के सामान को ऑर्डर कर सकते हैं, वो आपके डोर स्टेप पे आकर पहुंच जाता है. अब आपके जो कॉमर्स में चीजें इन्वॉल्व होती हैं वो तीन टाइप की होती है. तीन टाइप के पीपल इन्वॉल्व होते हैं: प्रोड्यूसर्स, सेलर्स और बायर्स. Commerce revolves around these categories of people. Producers are the people who produce different kinds of products or items and provide services. Sellers are the people who sell items or goods and give services to the people. Buyers are the people who purchase item and services. तो पूरा का पूरा कॉमर्स का मतलब ही क्या होता है? बिजनेस. इन्हीं तीन टाइप के लोगों के आसपास ही रिवॉल्व करता रहता है. प्रोड्यूसर्स जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं. फिर सेलर्स आते हैं जो इन मैन्युफैक्चर्ड सर्विसेज या गुड्स को बेचते हैं. फिर आपके बायर्स आते हैं जो लोग इन्हें खरीदते हैं. ये तीन चीजें आपकी कॉमर्स का बेसिक वाइटल पार्ट है. Advantages of e-commerce. E-commerce is a way for businesses and consumers to sell and purchase products online. Its advantages are as follows. For buyers, they can compare the price of items easily. They have the convenience of shopping at home. It enables doorstep delivery of the desired goods and services. They can read reviews of other users before buying the products. They can also give instant feedback and even initiate return processes. अब आपके e-commerce के advantages है. Buyers के लिए क्या फायदे हैं? आपको अलग अलग दुकानों पे जाके देखने की जरूरत नहीं है प्राइस को मैच करने के लिए. सिंपली आप अपने मोबाइल फोन्स में या वेबसाइट्स पे जाके प्राइस को कंपेयर कर सकते हैं. घर पे बैठे बैठे आपको फीजिबिलिटी मिल गई है. आपको बाहर भी जाने की जरूरत नहीं है. आपको एक ही जगह बैठे हुए आपको बेस्ट डील्स घर बैठे मिल सकती है. डोर स्टेप सर्विस है, आपकी डिलीवरी घर तक हो जाती है. फीडबैक आप दे सकते हैं. ईजी रिटर्न पॉलिसी होती है. घर पे बैठे बैठे डिलीवर भी हो गया है, रिटर्न करना है तो वो डिलीवरी बॉय आकर ही आपका जो रिटर्न आइटम है वो साथ में लेकर चला जाता है. तो बायर्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदे हैं. अब सेलर्स के लिए क्या फायदे हैं? For sellers, free or low-cost marketing activities. The web offers low overhead expenses. Potential buyers can be millions of people. अब क्या होता है?
ऑनलाइन क्योंकि आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सेल हो रही हैं, तो मार्केटिंग के लिए ज़्यादा पैसे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ओवरहेड एक्सपेंसेस आपके बच जाते हैं। प्लस एक दुकान में चांसेस होते हैं कि आसपास के लोग आकर ही खरीदते हैं, तो आपके जो कंज्यूमर्स होते हैं वो थाउजेंड्स में लिमिट हो जाते हैं। बट क्योंकि ऑनलाइन आपका प्रोडक्ट है तो मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोब वो सामान आपका खरीदा जा सकता है। ई कॉमर्स बिजनेस मोड्स, देयर आर 4 बेसिक मोड्स ऑफ ई कॉमर्स अवेलेबल। नंबर 1 बिजनेस टू बिजनेस B2B, सेकंड बिजनेस टू कंज्यूमर B2C, नंबर 3 कंज्यूमर टू कंज्यूमर C2C, नंबर 4 बिजनेस टू एम्प्लॉय B2E। तो आपका ई कॉमर्स बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, B2B बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर एंड B2E बिजनेस टू एम्प्लॉय। सबसे पहला है बिजनेस टू बिजनेस यानी कि B2B। दिस रेफर्स टू अ कंपनी सेलिंग और बाइंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू or from other companies. For example, a company that manufactures cars uses the internet to purchase tires from their supplier or manufacturer. B2B बिजनेस में क्या होता है, एक बिजनेस फॉर एग्जाम्पल कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको कार को मैन्युफैक्चर करना है, बिजनेस कंपनी है, अब उसको टायर्स अगर खरीदने हैं तो वो इंटरनेट सर्विस का यूज करता है विच इज अनदर काइंड ऑफ बिजनेस, और अलग टाइप के मैन्युफैक्चर से वो या अलग टाइप के टायर सेलर से वो टायर को खरीदता है, जो कि भी एक बिजनेस ही है। तो यहाँ पे बिजनेस दूसरे बिजनेस से कोई भी सर्विस या फिर गुड को परचेज करता है, ये होता है आपका B2B यानी कि बिजनेस टू business. Then comes your business to consumer यानी कि B2C. This refers to the transaction that takes place between a company and a consumer. The company establishes a website for its products and services so that the customer can order any products or services and gather information about them. With B2C business model, sellers can sell products directly to consumers without using traditional retail channels. This enables companies to sell products at a lower cost with a quick service. अब आता है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। यहाँ पर कोई भी आपका एक प्रोडक्ट ऑनलाइन होता है, बिजनेस आपका वो पोस्ट करती है एक्टिविटी, आपका जो भी आइटम होता है, और सीधे वो कंज्यूमर उसको खरीद लेता है, तो ये आपका होता है B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर। यहाँ पे डायरेक्टली आप कंज्यूमर तक अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हैं। देन कम्स योर कंज्यूमर टू कंज्यूमर C2C. In this, one consumer auctions goods to other consumers. If you are interested, you place a bid on an item. The highest bidder, as in any other auction, buys item. OLX is an example of C2C e-commerce. अब आता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। जैसे आपके OLX साइट्स होते हैं जहां पर आप अपना प्रोडक्ट, आपको कोई बिजनेस नहीं है बट आपको अपने प्रोडक्ट को बेचना है, आप एक पर्टिकुलर प्राइस उस पर कोट कर देते हैं जिस पे दूसरे कंज्यूमर को कुछ खरीदना होता है, वो डायरेक्टली खरीद लेता है। तो यहाँ पे कोई बिजनेस की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ पे कंज्यूमर टू कंज्यूमर बिजनेस चल रहा है, कॉमर्स हो रहा है। फिर आता है बिजनेस टू एम्प्लॉय B2E. दिस इज ऑल्सो नोन एज इंट्रा बिजनेस ई कॉमर्स. इट रेफर्स टू द यूज ऑफ इंट्रानेट टेक्नोलॉजी टू हैंडल activities that takes place within a business. Unlike the previously discussed types of e-commerce business mode, B2E e-commerce does not generate revenue. Instead, it increases profits by reducing expenses within a company. For example, using B2E e-commerce, employees collaborate with each other, exchange data and information, and access the in-house databases, sales information, and market news. Business to employee में क्या होता है, यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट होता है उसकी हाई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देखी जाती है, बल्कि पहले वाले में यही था कि आप हाई प्रॉफिटेबिलिटी अपनी देखते थे या बिजनेस देखता था। यहाँ पर क्या होता है, बिजनेस जो होता है अलग अलग बिजनेसेस के एम्प्लॉयज जो होते हैं उनसे आपकी सेल्स मार्केटिंग की स्किल्स देखता है, डेटा बेसिस लेता है, अलग अलग इन्फॉर्मेशन लेता है ताकि वो अपने बिजनेस को और भी ज्यादा एनहांस कर सके। ये होता है B2E यानी कि बिजनेस टू एम्प्लॉय ई कॉमर्स। ई कॉमर्स वेबसाइट्स. An e-commerce website is your digital storefront on the internet. It facilitates the transaction between a buyer and a seller. It is the virtual space where you showcase products and online customers make elections. Some of the popular e-commerce websites are as follows. तो e-commerce websites क्या होती हैं आपकी, अलग अलग वेबसाइट्स होती हैं, अलग अलग टाइप का सामान होता है इस पे जो आप आसानी से खरीद सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला है Amazon.com. Amazon was founded by Jeff Bezos in late 1994. In the beginning, Amazon.com sold books, but today it is a vast internet-based electronic commerce site that sells books, music, movies, housewares, electronic toys, and many other goods, either directly or as a direct link between other retailers and the consumers. तो पहला आपका Amazon.com जो है, जेफ बेजोस ने इनको लेट 1994 में डिस्कवर किया था, इन्वेंट करा था। स्टार्टिंग में Amazon सिर्फ किताबें ही बेचता था, लेकिन आज की डेट में Amazon इतना वास्ट बन चुका है, बुक्स, मूवीज, म्यूजिक, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कपड़े, जूते, चप्पल, सब चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती हैं।
फिर आपका आता है flipkart.com. Flipkart Private Limited is an Indian electronic commerce company based in Bengaluru, India, founded by Sachin Bansal and Binny Bansal in 2007. The company initially focused on book sales before expanding into other product categories such as consumer electronics and lifestyle products. फिर आया आपका फ्लिपकार्ट. 2007 में इसे सचिन बंसल और बिनी बंसल ने लॉन्च किया था. बेंगलुरु बेस्ड ये आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है. स्टार्टिंग में ये भी किताबें ही सेल करती थी, लेकिन प्रेजेंट डे में ये भी हर टाइप का इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, अलग अलग टाइप के टपरवेयर, हर चीज़ें फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाती हैं. क्रिटिकल थिंकिंग. विवेक इज एन एस्पायरिंग पोएट एंड वॉन्ट्स टू शेयर हिज पोएम्स यूजिंग इंटरनेट, बट ही इज अनअवेयर ऑफ द सूटेबल सर्विस फॉर शेयरिंग हिज पोएम्स. सजेस्ट हिम द ऑप्शन थ्रू विच ही कैन फुलफिल हिज रिक्वायरमेंट. अब विवेक एक बहुत ही अच्छा पोएट है, वो अपनी जो पोएम्स हैं उनको पब्लिश करना चाहता है, बट कौन सी सूटेबल सर्विस वो ले उनको समझ में नहीं आ रहा है. आपको उनकी हेल्प करनी है. Snapdeal.com. Snapdeal is an online marketplace based in New Delhi, India. The company was started by Kunal Behl and Rohit Bansal in February 2010. Snapdeal has grown to become one of the largest online marketplaces in India, offering an assortment of 4 million plus products, shipping to more than 4,000 towns and cities in India. फिर Snapdeal आया 2010 में. इसे कुणाल बहल और रोहित बंसल ने फाउंड करा था. न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, ऑनलाइन बेस्ड है और प्रेजेंट डे में इतनी ज़्यादा वास्ट हो चुकी है. अराउंड 4 मिलियन से भी ज़्यादा इसमें प्रोडक्ट्स हैं और 4,000 से भी ज़्यादा टाउन्स और सिटीज़ जो इंडिया में हैं वहाँ पर ये अपने प्रोडक्ट्स को डिलीवर करती है. Next is Alibaba.com. Alibaba Group was established in 1999 initially by 18 people led by Jack Ma, a former English teacher from Hangzhou, China. Today, Alibaba.com is the leading platform for global wholesale trade. It serves millions of buyers and supplies around the world. It sells millions of products in over 40 different categories, including consumer electronics, machinery and apparel. अब आता है Alibaba.com. 1999 में ये लॉन्च हुआ था. उस टाइम पे सिर्फ 18 लोग थे. किसने इसको लीड करा था? जैक मा, जो कि चाइना के ही एक इंग्लिश टीचर रह चुके हैं. बट प्रेजेंट डे में Alibaba.com इज अ लीडिंग प्लेटफॉर्म ग्लोबली. बहुत सारी होलसेल ट्रेड ये करता है. इसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आते हैं, 40 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, मशीनरी है, बहुत सारी चीज़ें आपको Alibaba.com पे मिलती है. E-commerce payment methods. Just because e-commerce payments occur over the internet doesn't mean they all happen in the same way. As e-commerce has expanded at a rapid rate, the methods by which people pay for goods and services online have diversified. Customer preferences around commerce payment methods vary considerably in different parts of the world, and the field is constantly evolving. Globally, credit and debit cards and digital wallets are the most popular e-commerce payment methods. But other payment methods like bank transfers and cash on delivery (COD) remain popular in certain regions. The use of mobile payments is also growing, particularly in markets with high smartphone penetration. Here are some of the most popular global e-commerce payment methods available today. Before moving further, अलग अलग पेमेंट मेथड देखने से पहले जो ई-कॉमर्स पेमेंट मेथड्स हैं स्टार्टिंग से ही सेम तरीके के नहीं रहे हैं. आपको मल्टीपल वेज दिए जाते हैं. यहाँ पर जो लोग होते हैं अब उनकी जो डिमांड्स हैं वो भी डाइवर्सिफाई होती जा रही हैं. अलग अलग गुड्स हैं, कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक्स आपको मिलता है, कहीं पे आपको क्लोथिंग मिलती है, कहीं पे फुटवेयर मिलता है, कहीं पे आपको लाइफस्टाइल के अलग अलग सामान मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मिलते हैं. अब आपके बहुत सारे पॉपुलर मेथड है, जैसे कि आपका COD यानी कि कैश ऑन डिलीवरी. आपका प्रोडक्ट आपको एक बार मिल जाता है, उसके बाद आप उसको कैशिफाई कर सकते हैं, यानी कि डिलीवरी के बाद आप कैश दे सकते हैं. इसके अलावा ग्लोबल ई-कॉमर्स में आपके बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं. पहला है क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स. क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स आर द मोस्ट कॉमन पेमेंट मेथड्स फॉर ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शंस. दे अलाउ कस्टमर्स टू मेक पेमेंट्स क्विकली एंड कन्वीनियंटली. तो ये सबसे फेमस आपका मेथड है. क्या है? डेबिट और क्रेडिट कार्ड. बड़ी आसानी से आप सेफ भी रहता है और आपको कैशलेस ट्रांजैक्शन करने का ये मौका देता है. फिर आपका आता है डिजिटल वॉलेट्स. Digital wallets such as PayPal, Apple Pay and Google Pay have become increasingly popular. They allow customers to store payment information securely and make payments with just a few clicks. According to Statista, digital wallets started pacing alongside credit cards for the first time in 2020 as the most popular online payment method in the
US, and it's a trend that has only continued. अब आपके आते हैं डिजिटल वॉलेट्स जैसे पेपैल, एप्पल पे, गूगल पे. तो इनके थ्रू क्या होता है, आपको अपने क्रेडिट कार्ड्स को ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं होती है. आप सिंपली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से आपकी पेमेंट कर सकते हैं. और अकॉर्डिंग टू द स्टेटिस्टिक्स आपके 2020 में ये देखा गया है कि क्रेडिट कार्ड्स के बिल्कुल साथ साथ आपके ऐसे डिजिटल वॉलेट्स भी बिल्कुल सेम पेस पे चल रहे हैं. यूएस में सबसे ज्यादा पहले ये प्रचलित यानी कि पॉपुलर हुए थे, उसके बाद ये ट्रेंड कंटिन्यूड है, रुक नहीं रहा है. फिर आपके आते हैं बैंक ट्रांसफर्स. बैंक ट्रांसफर्स, also known as electronic fund transfers, EFTs, allow customers to transfer money from their bank account to the business's bank account. While bank transfers are used around the world, they are particularly popular in Europe and Asia. According to a survey by the European Central Bank, bank transfers accounted for 45% of e-commerce payments in the European Union in 2020. बैंक ट्रांसफर्स, जिनको आप इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर्स यानी कि EFTs भी कहते हैं, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में आपको कोई भी टाइप का अमाउंट को, ट्रांजैक्शन को फुलफिल करना होता है तो ये यूज़ करा जाता है. ये हर जगह अराउंड द वर्ल्ड यूज़ करा जाता है. पर्टिकुलरली ये पॉपुलर कहाँ पे है, आपके यूरोप और एशिया में. ये भी देखा गया है कि 45% ऑफ द ई कॉमर्स की जो पेमेंट्स है यूरोपियन यूनियन में 2020 में 45% आपके इसी मेथड से करे गए हैं. कैश ऑन डिलीवरी, COD. COD is a payment method in which customers pay for their purchases when they receive them, not before. This payment method is common in countries where credit and debit card usage is low. Nielsen's Global Connected Commerce Survey noted that around 83% of customers in India preferred COD when paying for online purchases. अब आता है COD. यहाँ पर आप कोई भी सामान जब खरीदते हैं तो उससे पहले आप पैसे नहीं देते हैं, डिलीवरी से पहले, डिलीवरी के बाद ही आप पैसे देते हैं, या वहां पे यूज किया जाता है जहां पे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड्स को कम यूज करा जाता है. अकॉर्डिंग टू नीलसन्स ग्लोबल कनेक्टेड कॉमर्स सर्वे, इंडिया में अराउंड 83% of the consumers use COD as their payment option. Then comes your mobile payments. Mobile payments allow customers to pay using their mobile devices. Mobile payments are projected to account for more than 43% of total retail e-commerce sales in 2023, an increase from around 42% in 2022. अब आपके आते हैं मोबाइल पेमेंट्स. आप सिंपली अपने मोबाइल डिवाइसेस से पेमेंट कर सकते हैं. ये भी देखा गया है कि अराउंड 43% ऑफ द टोटल ई कॉमर्स सेल्स 2023 में हुई है वो इसी मेथड से हुई है, और उसके बाद वो इंक्रीज हुआ है अराउंड 42% जो कि 2022 में देखा गया था. फिर आता है बाय नाउ पे लेटर. Buy now, pay later is a payment option that allows customers to purchase goods or services up front and delay payment until a later date, often with interest or fees. अब आता है, जैसे आपने सामान अभी खरीद लिया बट आपको पैसे कुछ टाइम के बाद देने हैं तो आप ये मेथड यूज कर सकते हैं. कुछ इंटरेस्ट या फी चार्जेस भी आपसे लिए जा सकते हैं. Cryptocurrency such as Bitcoin and Ethereum is a digital currency that can be used to make e-commerce transactions. This payment method is becoming more widely accepted by online retailers. फिर आता है cryptocurrency. कोई इसमें नोट या पैसे कोई इस्तेमाल नहीं होता है, डिजिटल मनी होता है. बिटकॉइन जैसे इसका एक एग्जाम्पल है. ये मेथड भी बहुत ज़्यादा यूज करा जा रहा है बाय द ऑनलाइन रिटेलर्स. Then comes your prepaid cards. Prepaid cards are a type of debit card that is loaded with a specific amount of money which a customer can use to pay for online purchases, just as they would with a regular debit card. जैसे आपके डेबिट कार्ड्स होते हैं, पैसे उसमें होते हैं तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, वैसे आपके प्रीपेड कार्ड्स भी होते हैं. पहले से आप उनमें कुछ अमाउंट ऐड ऑन कर देते हैं एंड देन यू कैन यूज इट फॉर योर ऑनलाइन परचेजेस. Next topic is blogging. Blogging is the process that implies creating articles, photos and other forms of content and publishing them on a website. It is a modern and dynamic medium by which you can publish your ideas, opinions and stories online. Its characteristics include informal language, a laid-back atmosphere, regular updates, life hacks, tips and a high level of customer engagement. तो blogging क्या होता है? आर्टिकल्स आप क्रिएट कर सकते हैं, फोटोज उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, अलग अलग टाइप का कंटेंट होता है जो आप पब्लिश करते हैं. इसमें आप अपनी पर्सनल आइडियोलॉजी या फिर किसी और के बारे में भी इंफॉर्मेशन को कॉन्स्टेंटली आप अपडेट करते रहते हैं. ब्लॉग. A blog, short for web blog, is an online journal or informational website run by an individual group or corporation that offers regularly updated content, blog post about a topic. It presents information in reverse chronological order and it's written in an informal or conversational type. The entries that appear on a blog are called posts and the act of publishing a blog is called posting. A single person who owns and maintains blog is known as a
blogger. A blog that contains video is sometimes called a video blog or vlog. Microblogging is also a form of blogging. A microblog differs from a traditional blog in which content is typically smaller. Microblog allows users to publish short messages, usually between 100 and 200 characters, for others to read. These small messages are sometimes known as microposts. Twitter.com is a famous microblogging website. Pinterest, FriendFeed and Tumblr.com are some other popular microblogging sites on the internet. Some of the famous blog hosting services are Blogger, www.blogger.com, Typepad, www.typepad.com and Wix, www.wix.com. तो ब्लॉगिंग क्या होता है बेसिकली? ब्लॉग क्या होता है? आपका शॉर्ट फॉर्म होता है वेब ब्लॉग का। इसका मतलब होता है कॉन्वर्सेशनल फॉर्म में, अच्छे खासे फॉर्मेट में आप इसमें कोई भी किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन को पोस्ट करते हैं, उसको आप पोस्ट कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को पोस्टिंग कहा जाता है। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, यानी कि जो सबसे पहले आप ब्लॉगिंग करते हैं वो सबसे एंड में चला जाता है और सबसे ऊपर आपका रहता है लेटेस्ट जो आपने ब्लॉगिंग करी होती है। जो आपकी ब्लॉग में जिसमें आपकी वीडियोस होती हैं उसको आप वीडियो ब्लॉग या फिर व्लॉग भी कहते हैं। फिर आपका माइक्रो ब्लॉगिंग की टर्म आता है। ये टिपिकली आपके ब्लॉग से थोड़ा सा छोटा होता है, इसका कंटेंट ज़्यादा बड़ा इसमें नहीं होता है। यूजुअली आपके जो मैसेजेस होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, 100 से 200 कैरेक्टर्स के बीच में होते हैं फॉर अदर्स टू रीड, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। स्मॉल मैसेज जो होते हैं वो उसको माइक्रो पोस्ट भी कहा जाता है। जैसे आपका twitter.com हो गया, छोटे छोटे आपके मैसेजेस होते हैं, पोस्ट होता है। टम्बलर होता है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स भी आपकी बहुत सारी देखी गई हैं, जैसे कि ब्लॉगर, टाइपपैड, विक्स, ये सारी आपकी माइक्रो ब्लॉगिंग की साइट्स हैं। Do you know the term blogosphere refers to the worldwide collections of blogs? There are over 100 million blogs on the web. तो blogosphere का मतलब क्या है? जहाँ पर आपके पूरी दुनिया में जितने भी blogs हैं वो आपके एक जगह पर कलेक्ट करे हुए हैं। अराउंड 100 मिलियन प्लस ब्लॉग्स हैं आपके वेब पे। Do you know the term web blog was coined by John Barger on 17 December 1997? The short form blog was coined by Peter Merholz, who jokingly broke the word web blog into the phrase "we blog" in his blog peterme.com in April or May 1999. A blog used for the sole purpose of spamming is known as Spareblog. A blog search engine is one that searches blog contents. One special blog search engine is Technarty. अब आपका जो वेब ब्लॉग है ये किसने आपका वर्ड कॉइन करा था? जॉन बार्जर ने 17 दिसंबर 1997 में। और जो शॉर्ट फॉर्म है इसका ब्लॉग वो जोकिंगली मजाक में ही पीटर मेरहोल्स ने एक बार पोस्ट कर दिया था, जिसके बाद इसका नाम ब्लॉग हो गया। अब ऐसा ब्लॉग जो सिर्फ स्पैमिंग मिलिशियस पर्पस के लिए यूज करा जाता है उसको आप स्प्लॉग बोलते हैं। फिर आपका एक ब्लॉग सर्च इंजन होता है जिसमें आप किसी भी टाइप के ब्लॉग कंटेंट को सर्च कर सकते हैं। ऐसा एक टाइप का आपका सर्च ब्लॉग इंजन है टेकोनाटी। Creating a blog. In this example, for creating a blog, we are using Blogger. The Blogger is a product of Google. Step 1, open www.blogger.com website. Step 2, click on sign in. Step 3, type your login ID and the password. Password will appear in the form of black dots. Your login ID and password are same as that of your Gmail account. Step 4, click on next button. Step 5, click on create blog. Choose a name for your blog box appears. Step 6, type the name for your blog which appears at the top of the page. Step 7, click on next. Choose a URL for your blog box appears. Step 8, type the address you want to use. It will check the availability of your address. You need to change the address if it already exists. Step 9, click on next. Step 8, display name window appears. Enter a name for display. Step 11, click on finish. Blogger creates your blog. Now you can add your post in it. अब आपको blog अगर create करना है तो इस example के लिए आप Blogger use कर रहे हैं। ब्लॉगर गूगल का ही एक प्रोडक्ट है। सबसे पहले आप www.blogger.com वेबसाइट को ओपन करेंगे, साइन इन पे क्लिक करेंगे, अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड अपीयर हो जाएगा आपके ब्लैक डॉट्स में। आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो होता है वो बिल्कुल आपके जीमेल अकाउंट से मैच करता है। फिर आपको नेक्स्ट बटन पे जाना है, फिर आपको क्लिक करना है क्रिएट ब्लॉग पे। आपके ब्लॉग बॉक्स में आप अपना ब्लॉग का नाम डालेंगे। उसके बाद आप जब नाम टाइप कर देंगे जो आपके पेज के बिल्कुल टॉप पे दिखाई देगा, फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपको अपने ब्लॉग बॉक्स जो अपीयर होगा, चूज अ URL फॉर योर ब्लॉग, एक बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा। यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है जो आप यूज करना चाहते हैं। इट विल चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ योर एड्रेस। आपको चेंज करना पड़ेगा अगर ऑलरेडी वो एड्रेस एग्जिस्ट करता है। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपका जो नेम विंडो है वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा, वहाँ पे आपको एक नया नाम डालना है। फाइनली आपको फिनिश पे क्लिक कर लेना है। आपका जो ब्लॉगर है वो क्रिएट हो जाएगा एज अ ब्लॉग। Posting on your blog. Step 1, click on new post.
the new window appears. Step 2, in the title text box, type a post title. Step 3, in the large text box, type the body of the post. You can format the text by using icons on the toolbar. Step 4, when you are done, click on publish. A confirmation box may appear. Step 5, click on confirm. Blogger will publish your post. You can view your post. From outside the Blogger site, use web browser to navigate to your blog post address, https://youraddress.blogspot.com, where your address is the address you specified when you created the blog. अब अगर आपको ब्लॉग को क्रिएट करना है, सबसे पहले अगर आपको पोस्टिंग करनी है, आप क्लिक करेंगे न्यू पोस्ट पे, आपके सामने एक न्यू विंडो अपीयर हो जाएगी. इसमें आपको टाइटल टेक्स्ट बॉक्स आएगा, उसमें आपको आपके पोस्ट का जो टाइटल है उसको टाइप कर देना है. उसके बाद आपका जो लार्ज टेक्स्ट बॉक्स होगा उसमें आपको पोस्ट का बॉडी लिखना है. जो आपका टेक्स्ट है उसको आप फॉर्मेट कर सकते हैं यूजिंग द आइकन्स ऑन द टूल बार. जब आपका काम खत्म हो जाएगा आपको क्लिक करना है पब्लिश पे. एक कन्फर्मेशन बॉक्स आपके सामने आएगा, क्लिक ऑन कन्फर्म अगर आपकी सारी चीज़ें ठीक हैं. ब्लॉगर जो है वो आपका जो पब्लिश हो जाएगा, आपका पोस्ट पब्लिश कर देगा. आप इसको व्यू कर सकते हैं कैसे, ब्लॉगर साइट पे जाइए, यूज द वेब ब्राउजर टू नेविगेट जो भी आपका ब्लॉग स्पॉट एड्रेस है. फॉर एग्जाम्पल https://youraddress.blogspot.com, जहाँ पे आपका जो एड्रेस आपने डाला हुआ था स्टार्टिंग में, जो URL आपने डाला था उसको एंटर करके आप उस ब्लॉग को देख सकते हैं. Note, the steps may vary due to updation done by the concerned website from time to time. अब कुछ steps इससे थोड़ा हटके भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कौन सी वेबसाइट की अपनी अपडेशन उन्होंने करी है. Let's revise. E-commerce is buying and selling of products online. Producers, sellers and buyers are three different types of people involved in e-commerce. E-commerce website is your digital storefront on the internet. There are many e-commerce payment methods like credit and debit cards, digital wallets, bank transfer and COD, etc. Net banking connects us with our bank using a secured password to access our account online. A blog is a type of website which contains regular entries of commentary, descriptions, some other materials such as graphics or videos. अब आपका ई-कॉमर्स क्या है, इसमें ऑनलाइन आप अलग अलग मेथड से B2B, B2C, C2C एंड B2E मेथड से आप कॉमर्स को कर सकते हैं. बहुत सारे आपके पेमेंट मेथड्स होते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं. फिर आपका ब्लॉगिंग आता है, ब्लॉगिंग में आपके अलग अलग पोस्ट होते हैं, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये पोस्ट करे जाते हैं. फिर आपकी माइक्रो ब्लॉगिंग आती है, 100 से 200 कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे आपका ट्विटर हो गया, टम्बलर हो गया. तो ये सारी वेबसाइट्स आपको ब्लॉग करने के लिए हेल्प करती हैं. सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज है आप खुद से करिए.